हेलो फ्रेंड्स, आईएएस यूपीएससी 2017 एग्जाम और विभिन्न स्टेट लेवल के पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये हमारी ऑथेंटिक करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स की सीरीज है। आज डेट है 31 अगस्त 2016 और 31 अगस्त 2016 का द हिंदू। इसमें एडिटोरियल है, हेडिंग है द लेमोआ एम्ब्रेस, द साइनिंग ऑफ द लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस एडिटोरियल को हम एक सिंगल लॉट में एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद इसके जो वोकैबुलरी वाले वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसका मीनिंग देखेंगे और साथ ही साथ इसको उसके बाद हिंदी में अच्छी तरीके से समझेंगे। The signing of the Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) during Defense Minister Manohar Parrikar's visit to Washington is a significant step forward for India and the US. The agreement, which comes after more than a decade of negotiations, puts an automatic approvals process in place for the two militaries to share each other's bases for various operations. These include port visits, joint exercises, joint training, humanitarian assistance, and disaster relief efforts. Other uses are to be discussed on a case by case basis. The agreement will aid the sort of operations India has undertaken to rescue standard to rescue stranded Indians in conflict zones. The agreement will aid the sort of operations India has undertaken to rescue stranded Indians in conflict zones. Further, as the Indian military continues to expand its role to aid in disaster relief as it did during the 2004 tsunami, it will benefit from easier access to America's network of military bases around the world. The pact will also enhance the military's capabilities to be an expeditionary force at a time when Indian interests are distributed around the world, with major investments planned both onshore and offshore in oil fields. The US too has required the help of India as it did when emergency planes were refueled in Delhi during the Nepal earthquake relief operation. As India and the US explore plans for maritime cooperation in the Asia Pacific as a part of the joint vision statement, LEMOA is going to add value. LEMOA is not without its drawbacks. However, as is evident from the fact that it took so many years to agree upon, even after the center had cleared the foundational agreement. As it is known, it took several months and at least 4 high-level meetings to finalize the text. A major reason for this was that although India embarked on closer defense ties with US years ago, there was no consensus or support within the establishment for an alliance of any kind, which the LEMOA had come to symbolize. Mr. Parrikar pointed out during his
joint appearance with US Defense Secretary Ashton Carter. The finally negotiated text has nothing to do with setting up US bases in India, and there is no obligation on either side to carry out any joint activity. Mr. Parrikar also mentioned a need to explain to the people in the import of the agreement by bringing it into the public domain before the government considers discussions on the other foundational agreements the US is keen to draw India into. The caution from Mr. Parrikar shows a nuanced under understanding of the benefits and reservations about the center's latest move, which is a welcome trend. सो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा. अब हम इसको हिंदी में समझते हैं. सबसे पहली बात यह है, ये याद रखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके सैनिक अड्डे विश्व भर में फैले हुए हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे अफ्रीका के देश हो, या अन्य अनेक विवादित स्थान जहां पर कि अनेक कारणों से और ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के लंबे समय से विश्व भर में फैले हुए सैनिक अड्डे विद्यमान हैं. इससे भारत को अनेक मुद्दों पर लाभ मिल सकता है. ये जो रिसेंटली लेमोआ एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, लेमोआ का जो समझौता हुआ है, इसका जो फुल फॉर्म है LEMOA, इसका फुल फॉर्म हम आपको बताते हैं. ये है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ. पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर का जो यात्रा थी वाशिंगटन, वो गए थे. ये एक महत्वपूर्ण कदम था भारत और अमेरिका के बीच दशकों से इस लटके हुए एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने का. और मनोहर पारिकर जी की इस यात्रा में ये लेमोआ एग्रीमेंट जो है, इस पर आम सहमति और इस पर बिल्कुल फाइनल स्टेज वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है. इस एग्रीमेंट के कारण स्वतः ही एक ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसेस, एक स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया काम करने लगेगी. भारत और अमेरिका दोनों देशों के सेनाओं के बीच में एक दूसरे के जो सैनिक अड्डे हैं उनका प्रयोग करने के बारे में, और वो सैनिक अड्डे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस चलाने में काम में लाए जा सकते हैं. जो गतिविधियां इस समझौते लेमोआ के अंतर्गत मान्य हैं वो है बंदरगाहों पर विजिट करना, संयुक्त अभ्यास करना, संयुक्त ट्रेनिंग करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, आपदा प्रबंधन के समय कार्य करना मिलकर. तो इस प्रकार के ये जो 5 तरह की चीजें हैं, पोर्ट विजिट्स, जॉइंट एक्सरसाइजेज, जॉइंट ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, 5 तरह की चीजें हैं जिनका की विकल्प खुल गया है इस समझौते लेमोआ के होने के बाद. एक बार हिंदी में देख लेते हैं. बंदरगाहों पर विजिट, बंदरगाहों पर जाना पहला. दूसरा, संयुक्त अभ्यास सत्र. तीसरा, संयुक्त ट्रेनिंग सत्र. चौथा, मानवीय सहायता. पांचवा,
आपदा प्रबंधन। इन 5 कामों के लिए भारत और अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे के सैनिक अड्डों का प्रयोग कर सकेंगी। अदर यूजेज आर टू बी डिस्कस्ड ऑन ए केस बाय केस बेसिस। और यदि अन्य इन पांच मुद्दों के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर एक दूसरे देश की सहायता चाहिए, यानी कि अमेरिका और भारत को में से एक पक्ष को दूसरे पक्ष की यदि सहायता इन 5 मुद्दों के अलावा किसी छठे मुद्दे पर चाहिए, तो उसके लिए विशिष्ट प्रकार से स्पेसिफिकली जो है विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या वो मुद्दा सहयोग करने लायक है अथवा नहीं। द एग्रीमेंट विल एड द sort of operations India has undertaken to rescue stranded Indians in conflict zones। जैसे कि हमने उदाहरण देखे हैं, ऑपरेशन संकट मोचन अभी पिछले दिनों चलाया गया था, जिसमें कि भारत के विदेश राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह विवादित क्षेत्रों से, जो संकटग्रस्त युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं विश्व के, वहां से अपने नागरिकों को बचाने के लिए और बचा करके विमान में बैठा करके वापस लाए थे। तो जिस प्रकार से ये ऐसे ऑपरेशंस अब जो है काफी कम अंतराल पर जल्दी जल्दी चलाए जाने लगे हैं, जिसमें कि भारत अपने नागरिकों को किसी युद्धग्रस्त विवादित क्षेत्र से बाहर सुरक्षित निकालना चाहता है। ऐसे में इस प्रकार का समझौता जो है काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसे सभी स्थानों पर जो नियरेस्ट बिल्कुल निकटतम अमेरिकी सैनिक अड्डा होगा, वो हमारे भारतीय सेना के विमानों के उतरने और उनके टेक ऑफ करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा मानवीय सहायता के दृष्टिकोण से। और फर्दर, as the Indian military continues to expand its role and aid in disaster relief as it did during the 2004 tsunami। और जिस प्रकार से 2004 की सुनामी आने पर विश्व के अनेक देशों में और अपने देश में भी भारतीय सेना ने आपदा प्रबंधन में अपनी कुशलता दिखाई थी, और आपदा प्रबंधन के विषय में भारतीय सेना की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है। तो इससे अमेरिका को भी लाभ होगा, और अमेरिकी नेटवर्क के जो मिलिट्री अड्डे विश्व भर में फैले हुए हैं, उससे भारत भी पूरी तरीके से लाभ उठा सकेगा। द पैक्ट विल also enhance the military's capability to be an expeditionary force at a time when Indian interests are distributed around the world। जबकि आज भारत की जो वित्तीय साझेदारियां हैं और निवेश है भारत के, चाहे वो ऑफशोर निवेश हो चाहे ऑनशोर निवेश हो, चाहे वो ऑफशोर निवेश या ऑनशोर निवेश जो है वो पेट्रोलियम और तेल के प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों में हो, तो इस प्रकार से यदि भारत विश्व भर के किसी स्थान पर किसी देश में अपना कोई उत्खनन अभियान चलाना चाहेगा, तो भी अमेरिका के सैनिक अड्डों का उसको लाभ इस समझौते, इस ट्रीटी के अंतर्गत जो है मिल पाएगा। The US too has required to help of India। अमेरिका को भी भारत की मदद की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रही है। जिस प्रकार से जब नेपाल में भूकंप आया था, तो जो रिलीफ आपदा राहत कार्यक्रम अमेरिका चला रहा था, उसमें नई दिल्ली में अमेरिकी जहाज में, अमेरिकी प्लेन में ईंधन भरने की अनुमति भारत ने दी थी। वो इसी प्रकार की गतिविधियों के अंतर्गत आता है, जिस प्रकार की गतिविधियां जो हैं इस समझौते में उल्लेखित की गई हैं। इसके अलावा चीन के मैरीटाइम प्रोग्राम्स को, चीन के मैरीटाइम की योजनाओं, मैरीटाइम डेवलपमेंट की योजनाओं को काउंटर करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, अर्थात उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए चीन की गतिविधियों को भारत और अमेरिका जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक जोन में ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट के आधार पर समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भी सहमत हैं, और लेमोआ इस समुद्री सहयोग के क्षेत्र में भी अच्छी तरीके से भारत के काम आएगा।
लेमोआ जैसे कि कोई भी वस्तु जो है वो लिमिटेशंस के बगैर नहीं होती, तो लेमोआ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। हालांकि ये बड़ा स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा वर्ष लगे इसके ऊपर सहमति बनने में, और वो सहमति भी तब जाकर बनी जब केंद्र सरकार ने एक आधारभूत एग्रीमेंट, आधारभूत समझौते की आधारभूत शर्तें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दी, तब जाकर के सहमति बनी। और एज इट इज नोन, it took several months and at least 4 high-level meetings to finalize the text। और जो आधारभूत समझौते की शर्तें जिनको बहुत ज़्यादा क्लियर करके बताया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और उसी आधार पर, उन क्लियर कट शर्तों के आधार पर ही इतने सालों बाद सहमति हो पाई है। तो उस ड्राफ्ट को, जिसमें कि ये सब चीज़ें क्लियर कट तरीके से स्टेट की गई थी, उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए कम से कम 4 उच्च स्तरीय बैठकें हुई अधिकारियों की। और इसके अलावा इन सभी बैठकों में जो है पूरे टेक्स्ट को, पूरे लिखित डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। एक बहुत बड़ा कारण इसके अंतर्गत इस देरी का बहुत बड़ा कारण ये था कि यद्यपि भारत जो है अमेरिका के साथ नज़दीकी रक्षा संबंधों के बारे में उत्साहित रहता है, there was no consensus or support within the establishment for an alliance of any kind, which the लेमोआ had come to symbolize। so, फिर भी जो एस्टेब्लिशमेंट है दोनों तरफ, अमेरिका में भी जो एस्टेब्लिशमेंट है अर्थात अमेरिका की सरकार का जो थिंक टैंक है, उसी प्रकार से भारतीय सरकार का जो थिंक टैंक है, उन दोनों में कुछ आशंकाएं बनी हुई थी। और चाहे आपसी सहयोग सेना के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हो, लेकिन उस दृष्टि तक भी आगे नहीं, उस सीमा तक भी आगे नहीं बढ़ा था कि बिना हिचक के दोनों देश नजदीक आकर एक दूसरे के सैनिक अड्डों के ही प्रयोग की अनुमति सीधे सीधे दे पाए। इतना भी कॉन्फिडेंस आपस में अभी तक नहीं बना था। लेकिन इस मोदी सरकार के अंतर्गत भारत सरकार जो इस समय वर्तमान में सत्ता में है, तो उनके अंतर्गत अमेरिका और भारत के जो आपसी संबंध है वो नित नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। और ये मनोहर पर्रिकर जी के अमेरिका विजिट, वाशिंगटन विजिट के समय ये लंबे समय से लटका हुआ समझौते का फाइनलाइज होना, भारत अमेरिका के प्रगाढ़तम होते हुए लक्षणों वाले जो आपसी संबंध हैं उनके प्रगाढ़ होते हुए संबंधों का प्रतीक है, अच्छे होते हुए संबंधों का ही प्रतीक है। इसके अलावा मिस्टर मनोहर पर्रिकर ने ये बताया था अपनी अमेरिका की विजिट में एक संयुक्त वक्तव्य में, जो कि संयुक्त वक्तव्य यूएस अमेरिका के रक्षा सचिव एस्टोन कार्टर के साथ उन्होंने ज्वाइंट वक्तव्य जारी किया था। उसमें बताया गया था the finally negotiated text has nothing to do with setting up the US bases in India। उसमें ये बहुत क्लियर कट बताया गया था वाशिंगटन में जो घोषणा हुई थी इस बारे में, समझौते के बारे में, कि इस समझौते का तात्पर्य किसी भी दृष्टिकोण से ये नहीं है कि अमेरिकी अड्डे भारत में स्थापित होंगे, ऐसा कदापि नहीं है। और आपस में कोई ऐसा ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि किसी प्रकार से एक दूसरे के प्रति लिहाज रखते हुए कोई ज्वाइंट एक्टिविटी, कोई संयुक्त गतिविधि जो है वो कंपल्सरी तरीके से चलाने की बाध्यता हो, ऐसा भी नहीं है। मिस्टर पर्रिकर ने ये भी कहा था कि मुझे ये बताना और ये समझाना, एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक डोमेन में आम जनता को समझाना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट, एक मूलभूत समझौते की शर्तें सब
विचार पूर्वक तैयार की थी। जब भी अमेरिका किसी एक बार फिर से पढ़ते हैं। मिस्टर पारिकर ऑल्सो मेंशन्ड ए नीड टू एक्सप्लेन टू द पीपल दैट द इम्पोर्ट ऑफ द एग्रीमेंट बाय bringing it into the public domain after the before the government considers discussions on the other foundational agreements the US is keen to draw into। तो मनोहर पारिकर जी ने ये भी कहा था कि अमेरिका जो नए नए रक्षा क्षेत्र के समझौते करना चाहता है भारत के साथ, प्रत्येक समझौते को फाइनलाइज करने से पहले उसको पब्लिक डोमेन में जनता के सलाह के लिए, जनता के सुझावों के लिए रखा जाना अच्छी बात है और ये रखे जाएंगे इसी प्रकार से पब्लिक डोमेन में, ताकि जनता अपने बहुमूल्य सुझाव दे सके। और जिस प्रकार का एक सावधानी से भरा कदम श्री पारिकर की के कार्यकलाप से झलक रहा है कि वो हर एक समझौते को पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं। जनता के सुझाव और जनता के दृष्टिकोण में, जनता के नॉलेज में उस सारे समझौते की शर्तों को लाने के लिए, जनता को जानकारियां देने के लिए। ये सावधानी भरा हुआ कदम है मिस्टर पारिकर का। और लेकिन ये है कि जो केंद्र सरकार ने ये समझौता किया है ये अंततः भारत के एक व्यापक हित में होगा और इससे भारत को भविष्य में काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमारा डिस्कशन यही कंप्लीट होता है। ये हमारा आज का आर्टिकल था द लेमोआ समझौता। एक बार फिर से देख लेते हैं, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।